وعدوں پر کتنا عمل کیا وہ قوم پر چھوڑتا ہوں، لوگوں کے مسائل کی وجہ سے جدوجہد کر رہا ہوں، دوران ملازمت فرائض ایمانداری سے سر انجام دیے، عوامی خدمت کے لیے 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا، ملک میں ترقی لانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہوں، ایمانداری کو ہمیشہ اپنا نصب العین بنایا۔ چیف جسٹس کا سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لاہور کے کانوکیشن سے خطاب۔ چیف جسٹس کا شام کے اوقات میں لاہور میں ٹریفک جام پر نوٹس۔ شادی پر لوگ خوبصورت کپڑے پہن کر آتے ہیں لیکن ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، ٹریفک جام کا کچھ کریں، شادی ہالز کے اوقات تبدیل نہیں ہو سکتے، چیف جسٹس کا استفسار۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے کہا دیکھنا ہوگا کہ یہ بدل سکتے ہیں کہ نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی برطانوی آمد پر پی ٹی آئی کارکنوں کی بدنظمی، مانچسٹر ایئرپورٹ پر تحریک انصاف کے کارکن الجھ پڑے، دھکم پیل۔ ایک گروپ نے اسد قیصر کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا، اسپیکر قومی اسمبلی کی شرکت کے اعلان پر دونوں گروپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری کا 12 پاکستانیوں کو معاف کیا۔ ٹویٹ میں کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بہبود کے لیے کام کرتے رہیں گے، دیگر ممالک میں موجود تارکین وطن کے مسائل حل کرنے کے لیے پرامید۔ نئے سال پر عوام کو خوشیاں دینے کی تیاریاں مکمل، ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان، سمری تیار، ہائی سپیڈ ڈیزل 15، پیٹرول 9.5 روپے فی لیٹر کم کیے جانے کا امکان، فیصلہ 31 دسمبر کو وزیراعظم کی مشاورت سے ہوگا، اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے الیکٹرانک چالان پروجیکٹ کے اعداد و شمار جاری، گزشتہ 3 ماہ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 4 لاکھ سے زائد ای چالان جاری ہوئے، 55 ملین سے زائد جرمانہ قومی خزانے میں جمع ہوا۔ چالان جمع نہ کرانے والے لاہور میں گفتگو کر رہے تھے ایک تقریب سے، اور خطاب کے دوران ان کی جانب سے کہا گیا کہ میرا امتحان شروع ہو چکا ہے، نتیجہ میری ریٹائرمنٹ پر ہوگا، وعدوں پر کتنا عمل کیا وہ قوم پر چھوڑتا ہوں، لوگوں کے مسائل کی وجہ سے میں جدوجہد کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دوران ملازمت اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کیے، صبح 9:30 بجے سے رات 12 بجے تک عدالت میں رہا ہوں، عوام کی خدمت کے لیے 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا، ملک میں ترقی لانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے ایمانداری کو ہمیشہ اپنا نصب العین بنایا ہے، پیشہ ورانہ زندگی میں خلوص نیت سے ذمہ داری نبھانا اصل خدمت ہے۔ بلوچستان گیا تو پتا چلا کہ سب سے بڑے ہسپتال میں ICU نہیں تھا، بلوچستان کے سب سے بڑے ہسپتال میں آسامیاں خالی پڑی ہیں۔ 2000 پیرانب سے خود نوٹس لیا گیا ہے لاہور میں ٹریفک جام پر، اور انہوں نے یہ کہا کہ میئر صاحب ٹریفک جام کا کچھ بھی کریں، کل رات مجھے شادی میں جانا تھا لیکن ٹریفک دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ کیا شادی ہالز کے اوقات تبدیل نہیں ہو سکتے؟ ڈی سی لاہور کی جانب سے کہا گیا کہ شادی ہالز کا وقت تبدیل کرنے کا جائزہ لیں گے، شادی ہالز کے اوقات کار شادی ایکٹ کے تحت بنائے گئے ہیں، یہ بھی کہا کہ دیکھنا ہوگا یہ بدل سکتے ہیں کہ نہیں، ڈی سی لاہور کی جانب سے یہ کہا گیا۔ جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ شادی پر لوگ خوبصورت کپڑے پہن کر نکلتے ہیں لیکن ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں۔ لاہور میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے شام کے اوقات میں ٹریفک جام پر نوٹس لیا ہے، اور اس موقع پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میئر صاحب ٹریفک جام کا بھی کچھ کریں، کل رات مجھے شادی میں جانا تھا لیکن ٹریفک دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ کیا شادی ہالز کے اوقات تبدیل نہیں ہو سکتے؟ ڈی سی لاہور کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شادی ہالز کا وقت تبدیل کرنے کا جائزہ لیں گے، شادی ہالز کے اوقات کار شادی ایکٹ کے تحت بنائے گئے ہیں، دیکھنا ہوگا کہ ان میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ شادی پر جانے کے لیے لوگ خوبصورت کپڑے پہن کر نکلتے ہیں لیکن ٹریفک میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ لاہور میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے شام کے اوقات میں ٹریفک جام پر نوٹس لیا ہے، اور چیف جسٹس نے اس نوٹس میں یہ کہا کہ میئر صاحب ٹریفک جام کا بھی کچھ کریں، کل رات مجھے شادی میں جانا تھا لیکن ٹریفک دیکھ کر
परेशान हो गया। चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया कि क्या शादी हॉल्स के औकात तब्दील नहीं हो सकते। डीसी लाहौर की जानिब से इस पर यह जवाब दिया गया कि शादी हॉल्स का वक्त तब्दील करने का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि शादी हॉल्स के औकात-ए-कार शादी एक्ट के तहत बनाए गए हैं, देखना होगा कि इनको तब्दील किया जा सकता है या नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि शादी पर लोग खूबसूरत कपड़े पहनकर निकलते हैं लेकिन ट्रैफिक जैम में फंस कर रह जाते हैं, इसीलिए शादी हॉल्स के औकात-ए-कार को तब्दील करने के मुतालिक उनकी जानिब से डीसी लाहौर से इस्तफसार किया गया। अहम खबर शामिल करेंगे मैनचेस्टर से। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की बरतानिया आमद पर पीटीआई कारकुनान की जानिब से बदनज़मी की गई। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पीटीआई कारकुन आपस में उलझ पड़े और धक्म पेल की। एक ग्रुप ने स्पीकर कौमी असम्बली के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया था। असद कैसर की जानिब से तकरीब में शिरकत के ऐलान पर दोनों धड़ों में झगड़ा हुआ। आपको बताएं कि एक ग्रुप की जानिब से यह कहा गया था कि तकरीब मुनक्किद की गई है, आप उस तकरीब में शिरकत करें। जब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से इस बात की हामी भरी गई कि हां मैं तकरीब में शिरकत करूंगा, तो दूसरा ग्रुप जो वहां पर मौजूद था उनकी जानिब से लड़ाई झगड़ा शुरू किया गया। इस तरह दोनों ग्रुप्स जो वहां पर मौजूद थे उनकी जानिब से बदनज़मी देखने को मिली। मैनचेस्टर में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की बरतानिया आमद पर पीटीआई कारकुनों की जानिब से बदनज़मी की गई। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पीटीआई कारकुन आपस में उलझ पड़े और धक्कम पेल की। एक ग्रुप ने स्पीकर कौमी असम्बली के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया था, जबकि असद कैसर की जानिब से तकरीब में शिरकत के ऐलान पर दोनों धड़ों में झगड़ा हो गया। और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, इनमें देखा जा सकता है कि असद कैसर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो इनके इस्तकबाल के लिए पीटीआई कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। ये दो अलग अलग ग्रुप थे और इनमें से एक ग्रुप की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया था स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के लिए, और इस ग्रुप की जानिब से असद कैसर को यह दावत दी गई कि आपके लिए तकरीब का एहतमाम किया गया है, आप तकरीब में शिरकत करें। असद कैसर ने जब उस तकरीब में शिरकत के लिए हामी भरी तो वहां पर मौजूद दूसरे ग्रुप की जानिब से इस पर तल्ख कलामी की गई और धक्कम पेल हुई और बदनज़मी का शिकार हुआ। और वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी के हवाले से आपको अपडेट करें, जिनकी जानिब से ट्वीट किया गया कि 12 समंदर पार पाकिस्तानियों को मुआफ़ी देने पर बहरीन की हुकूमत और बादशाह के शुक्रगुजार हैं। जुल्फी बुखारी ने कहा कि हुकूमत और अवाम की जानिब से बहरीन हुकूमत और बादशाह के ममनून हैं। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। दीगर ममालिक में मौजूद तारिकीन वतन के मसाइल भी हल करने के लिए पुरउम्मीद हैं। जुल्फी बुखारी की जानिब से ट्विटर पर यह पैगाम दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि 12 समंदर पार पाकिस्तानियों को मुआफ़ी देने पर बहरीन हुकूमत और उनके बादशाह का शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अवाम की जानिब से बहरीन हुकूमत और बादशाह के ममनून है, बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। जुल्फी बुखारी ने यह भी कहा कि दीगर ममालिक में मौजूद तारिकीन वतन के मसाइल भी हल करने के लिए पुरउम्मीद हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी की जानिब से ट्विटर पर पैगाम दिया गया। बहरीन हुकूमत का उनकी जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने कहा कि 12 समंदर पार पाकिस्तानियों को मुआफ़ी देने पर बहरीन हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, और ये भी कहा कि हुकूमत और अवाम की जानिब से बहरीन हुकूमत और बादशाह के ममनून हैं। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के हवाले से अहम खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि फवाद चौधरी की जानिब से नोटिस लिया गया है जेहलम में सिख गुरुद्वारे की तारीखी इमारत की ज़ब-उहाली का। मुतल्लिका इदारों को इमारत का जायजा लेने, तहफ़्फ़ुज़ और तज़ीन के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत की गई है। मजहबी इमारतें तारीखी असासा और सकाफती विरसे का अहम जुज़ हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मजहबी इमारतों की हिफाजत अखलाकी और मुआशरती जिम्मेदारी है। तज़ीन व मुरम्मत से सिख बरादरी को तारीखी इबादतगाह आमद का मौका मिलेगा।
वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ऐसे इक़दाम बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के फ़रोग़ में भी अहम है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जेहलम का दौरा किया और जेहलम में सिख गुरुद्वारे की तारीखी इमारत की ज़ब-ओ-हाली का नोटिस लिया। मुतल्लिका इदारों को इमारत का जायज़ा लेने, तहफ़्फ़ुज़ और तज़ीन के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत की गई है। मजहबी इमारतें तारीखी असासा और सक़ाफ़ती विरसे का अहम जुज़ है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया, जबकि उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि मजहबी इमारतों की हिफाजत अखलाकी और मुआशरती जिम्मेदारी है। फवाद चौधरी ने कहा कि तज़ीन व मुरम्मत से सिख बरादरी को तारीखी इबादतगाह आमद का मौका मिलेगा। वज़ीर इत्तलात की जानिब से कहा गया कि ऐसे इक़दाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ में भी अहम है। वज़ीर इत्तलात जिनकी जानिब से नोटिस लिया गया है तारीखी इमारतों की ज़ब-ओ-हाली का और तारीखी इमारत की ज़ब-ओ-हाली का नोटिस लेते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि मुतल्लिका इदारों को इमारत का जायज़ा लेने, तहफ़्फ़ुज़ और तज़ीन के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत जारी की जाती हैं। और अहम खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से। आपको अपडेट करेंगे कि 6 एडिशनल जजेस के मुस्तकिल होने की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई और मुस्तकिल होने वाले 6 जजेस से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। जजेस में मिसेस कौसर सुल्ताना, जस्टिस इरशाद अली शाह, जस्टिस शमसुद्दीन शामिल हैं। जस्टिस अमजद अली, जस्टिस अदनान इकबाल और जस्टिस आगा फैसल भी इनमें शामिल हैं। तकरीब हल्फ बर्दारी में एडवोकेट जनरल सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की जानिब से भी शिरकत की गई। सिंध हाई कोर्ट में 6 एडिशनल जजेस के मुस्तकिल होने की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई और मुस्तकिल होने वाले 6 जजेस से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। जजेस में मिसेस कौसर सुल्ताना, जस्टिस इरशाद अली शाह और जस्टिस शमसुद्दीन शामिल हैं। यह भी आपको बताएं कि जस्टिस अमजद अली, जस्टिस अदनान इकबाल और जस्टिस आगा फैसल भी इस तकरीब में शामिल हुए। तकरीब हल्फ बर्दारी में एडवोकेट जनरल सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की जानिब से भी शिरकत की गई। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 6 एडिशनल जजेस के मुस्तकिल होने के मौके पर तकरीब हल्फ बर्दारी का एहतमाम किया गया। मुस्तकिल होने वाले 6 जजेस से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हल्फ लिया, जबकि जजेस में मिसेस कौसर सुल्ताना, जस्टिस इरशाद अली शाह और जस्टिस शमसुद्दीन शामिल हैं। मोहसिन इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से इस मुतालिक मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। जी मोहसिन, बताइएगा। देखिए, सिंध हाई कोर्ट में आज एक तकरीब मुनक्किद हुई है जिसमें 6 एडिशनल जजेस के मुस्तकिल होने की ये हल्फ बर्दारी की तकरीब थी।